and welcome everyone to the Hustle Code. The Hustle Code is a series of curated talks with some of the most persistent founders and investors in the startup ecosystem. Here we try to decode the what, why, and how of their journeys. Through these stories, we wish to embrace the spirit of hustle. So brace yourselves for a gripping and an insightful dialogue. Today we have Tarun Saini with us. Tarun is a country boy, a hustler, and founder of Vidyakul, Bharat Ka online school, currently solving a fundamental problem for the next billion people. Tarun, it is a pleasure to have you on the show. Thank you so much, Tushar, to having me here, and looking forward to share my journey with you, with all the people who are actually going to listen this. Thank you so much, Tushar. Great. Can we start with your early years, your background, and a little bit about your education? Sure, Tushar. तुषार आई एम बोर्न ब्रॉट अप इन ए वेरी स्मॉल विलेज. मैं अंबाला के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं. तो पिताजी फार्मिंग करते हैं और जो मेरी मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं. सो आई एम ए टिपिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट. तो मेरा बचपन मेरे गांव में भी था और स्कूलिंग मैंने अपने जो गांव के स्कूल से की है, गवर्नमेंट स्कूल से. अर्ली डेज वाज वेरी चैलेंजिंग साइड क्योंकि हमारे गांव के आसपास साइंस में स्कूल नहीं था. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी डे 40 किलोमीटर फॉर माय हायर एजुकेशन. आई पास आउट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. आज भी मेरे को याद है कि जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे पापा ने ये बात मुझसे पूछी कि ये साइंस क्या होता है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बाद क्या होगा. सो यू कैन इमेजिन इट कि फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से आए हैं. तो that's how I graduate, pass out, and then started my career. Okay. Where did you go for education? हमारे गांव के पास जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो अंबाला है. तो अंबाला इज नियर बाय मेट्रो टाउन जहाँ पे साइंस का गवर्नमेंट स्कूल है. So it's around 40 kilometers from my hometown. So after your schooling, which stream did you choose to, study in? I done my year 11, year 12 in science, physics, chemistry, math. And after that, I started engineering. And then first year में मैंने अपनी engineering को drop out किया था इंडिया में. इंडिया में मैं engineering कर रहा था. And then the next phase of my life started from Australia. And why did you choose to go to Australia? Choose मैंने नहीं किया था, honestly तुषार जी, कि मेरी family ने मुझे कहा कि I think you have to go overseas for study. मेरी sisters जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में. So she asked me to come over there कि आप आइए और देखिए कि लाइफ मतलब इंडिया से बाहर कैसी है. So that's how I choose to go Australia for my higher education. So Tarun, initially the experience of going to Australia would have been a little tough for you, I'm guessing. You have studied from Hindi medium and you're suddenly going in a country where everybody speaks English, right? So can you explain to us or tell us a little bit about your early years in Australia? Yes, Tushar, it was very tough actually in India also क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए आपको IELTS एग्जाम देना होता है. आई रिमेम्बर इट कि 2 बार IELTS में फेल होने के बाद जो सिचुएशन थी फैमिली की, भाई तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो वो वाला था. तो बट फाइनली आई पास आउट. एंड तो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गया तो इट वाज टोटली डिफरेंट लाइफ. मतलब एक गांव से निकलना और ऑस्ट्रेलिया जाके एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको इंग्लिश के कुछ ही वर्ड्स आते हो. आई रिमेम्बर माय फर्स्ट वीक जब सिस्टर्स और मेरे ब्रदर इन लॉ दे वेंट फॉर जॉब एंड आई वाज वेरी हंग्री. सो तो मैं ये बर्गर किंग पे गया. सो आई आस्क्ड देम टू ऑर्डर द बर्गर. तो मेरे को बर्गर भी नहीं आता था ऑर्डर करना. तो आई आस्क्ड माय सिस्टर कि मैं क्या बोलूं वहाँ पे जाके. तो she sent me the text, can I have one veggie meal? तो वो मैंने दिखाया था. मुझे आज भी वो दिन याद है. I showed my phone to the guy who took the order. So he started laughing. He asked me, are you new in Australia? I said, yeah. So yeah, that's how I started. So how come from there you became a salesman in Australia? Yes, salesman in Australia. एक्चुअली तुषार जी, मेरे को जो मैं अभी भी फील करता हूँ, I don't know, so many people say, but still I feel it. I have burning desire. मेरे अंदर पता नहीं, मेरे को खुद लगता है कि if I want to do something, I really want to do it, and I can leave anything. और मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा अगर मैं कुछ चीज को अचीव करना चाहता हूँ. When I started my first job in Australia was the waitering. क्यों वेटर किया था? क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अपने कॉलेज से कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था.
क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। तो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी यार कि आपको वेटरिंग की जॉब एक ऐसी है जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करोगे। सो पहली मेरी जॉब थी वेटर्स की, जो मैंने एक ग्रीक रेस्टोरेंट में स्टार्ट किया। एंड इन दैट शॉप आई मेट वन गाय हु गेव मी वन बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। वो जब मैंने बुक रीड किया, उस बुक्स में जो सेल्समैन की जर्नी थी, हाउ दे शोन की हाउ यू मेक मनी, एक इंडिया का फेस जब आप पैसे के लिए देखते हो, हाँ कि, एंड देन ऑस्ट्रेलिया वेयर यू सी you can make good amount of the money, then I said okay, let's do something. And that guy who gave me the book, he introduced me to start team, और वहां से मैंने अपने door to door sales की जर्नी स्टार्ट की। तो that one book and that one person, I am still in touch with that guy. That changed my life, honestly. That's how I started door to door sales. But again, I mean, considering that English was not your first language and you were not, you didn't study in English initially, how come it's very difficult to imagine, you become a salesman and you can't really communicate in their language, right? So what was it like? Did initially you struggle, or initially also you sort of had a few successes over there? How I see this is, Tushar, people understand your body language, your feeling, than the words what you use. इंग्लिश अगर मैं कहूँ, इंडिया में भी हम ये देखते हैं कि अगर आप गांव से हैं तो इंग्लिश आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। मतलब ऑनेस्टली जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में डोर टू डोर सेल भी किया, तो आपको मैंने बताया था मैं अपने गांव से निकला, तो इंग्लिश वाज नॉट मच रिक्वायरमेंट। मोर देन दैट, द फीलिंग एंड द एक्सपीरियंस और योर वे ऑफ एक्सप्रेशंस टेल्स एवरीथिंग। तो जब मैं डोर टू डोर सेल स्टार्ट किया, तो मैंने एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाई जिसमें मैंने 10 अक्षर लिखे कि अच्छा ये बोलना है, ये एक्सप्लेन करना है, दैट्स इनफ। एंड और मैं वैसे ही स्टार्ट करता था। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं, यू जस्ट स्पीक, पीपल हैप्पी टू लिसन and they happy to share if you are willing to do something, or they happy to share their life, their thought with you if you ask them. So or again, sales was the reason to choose is कि आप डोर पे जाओगे, आप बताओगे, अगर अच्छा लगे तो लेगा, तो नहीं, you don't know, you can see that person again, so maybe the next door. तो आप मतलब क्या होगा ज्यादा से ज्यादा नो ही बोल देगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो so that's why I choose sales. Great. So how was the journey like? Were you a successful salesman, you would say? And how long did you continue sales over there? First 6 months was very hard, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट बनाना होता है, आपको अंडरस्टैंड करना है बिहेवियर क्या है यूजर का। तो पहले 6 मंथ काफी हार्ड रहे, बट स्लोली आई कैन से विद इन अ 6 month टाइम आई पिक्ड अप हाउ पीपल थिंक, what is the requirement, and I went deep into basically to knowing what I'm selling actually, or how can I help the another user. Not more than sale is more than is how I can help other person particular with my product, which gonna change their life. 6 months was hard. Slowly with my personal training, day to day basis की जो learning जो मैंने observe की, वो उसने help किया. And after 6 months, in the next 6 month time, so within a year, I was the top salesman in the entire Victoria. एक stammering boy से top salesman in entire Victoria state. It was a huge compliment for me, and company recognized that, and they in charge me to run their team for Victoria state, which I grew from 5 people to 80 people for next 4 years. So I worked in sales around 4.5 years. It's great, Tarun. In a way, you recognize your fear and you sort of attack them head on, right? And you also mentioned that you had the issue of stammering. Can you tell us a little bit on how did you overcome this? Was this never a challenge for you and you were pretty comfortable with stammering? ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना पास देखूं, लाइक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन पीपल, दे हेल्प मी अ लॉट टू कम फ्रॉम दिस फियर कि मेरे को स्टैमरिंग है। आज भी मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था, तो जब स्कूल में था तो इंडिया में एक ऐसा रहता है कि आपको स्टैमरिंग है तो लोग हंसते हैं। तो स्कूल के टीचर एक्चुअली मेक फन ऑन मी। दे यूज्ड टू से कि आप खड़े हो और ये लेसन पढ़ो पूरी क्लास के सामने, and they start laughing on it when you stammer it.
So, but when I see Australian people, they don't do like that. They know you have a stammer. They come and ask, okay, just relax, have a glass of water. They understand. They don't laugh on you. They feel that these guys who have a stammering doing something in the life. Come on, the fear not to do sales, और घर में नहीं बैठा है और वो जो भी वो ही कर रहा है जिससे उसको बोलने से ही पैसा मिलेगा। तो वो चीज़ जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी और जो वहाँ के लोगों ने साथ दिया, मैं कहूँगा वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हँसेंगे ना, बट आई कांट लिव लाइक दिस। So after that I say okay, just do it whatever you want to do. After that मैं कभी स्केयर नहीं हुआ हूँ। और आज भी, और मेरे को आज भी याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था, मैंने आपको ऑन द स्पॉट कहा था फर्स्ट कि तुषार जी, मेरे को स्टैमरिंग है और इसको मत सोचना कि मेरे से कुछ चीज़ का मैं बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको याद हो तो ठीक। So it's somehow truly inspirational, Tarun. A lot of things which you have gone through sort of can decrease the confidence of the other person, right? But you seem to be super, super confident in yourself. So what's the secret behind your confidence? सीक्रेट मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब तो सारी कोई सीक्रेट नहीं है। ओनली थिंग इज हाउ डू यू कम्युनिकेट योर सेल्फ यार, मतलब एज सिंपल एज इज कि तुम अपने आप से कहते हो अपने बारे में, यही सीक्रेट है। अगर तुम ये कहते हो कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, और उसी नजरिए से लोग आपको देखेंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम में कुछ कमी है तुम्हें, तो लोग तुम्हें उसी वे में देखेंगे। तो आई ऑलवेज बिलीव इट, वट एवर यू वॉन्ट टू शो द पीपल, दे विल सी यू ऑन द सेम आइज। तो एंड ऑफ द डे कि तुम अपने आप को मिरर के सामने खड़े होके क्या सोचते हो अपने बारे में, वही कम्युनिकेशन है, और उसी तरह से ही आप पूरा वर्ड दे। तो बी कॉन्फिडेंस यार, मतलब स्टीव जॉब की लाइन है, तुम नेकेड आए थे और नेकेड ही जाओगे, क्या हो सकता है इससे ज्यादा लाइफ में। Tarun, moving on. So you had some 4 years plus of experience in sales in Australia, right? After that, I guess you pursued an education business over there. Can you just help us a little bit in learning more about what kind of business you were running? It was more towards the sales contracting. We was working with few Australian colleges, और हम जब मैं ऑस्ट्रेलिया को भी देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी जियोग्राफिक है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और वहाँ भी कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो कि से बहुत ज्यादा दूर, लाइक सम आर द टाउन्स विच इज 100 किलोमीटर फ्रॉम। तो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन इज ए बिग चैलेंज। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे टुक वेरी गुड इनिशिएटिव कि अगर आप सिटी नहीं आ सकते, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम होम वाया थ्रू ऑनलाइन। कॉलेजेस ने, जो वहाँ के कॉलेज थे, उन्होंने इंसेंटिव लिया कि हम जो लोग वहाँ पे कंट्री साइड में रहते हैं, विल गिव देम द पेन और टैबलेट वेयर दे कैन स्टडी फ्रॉम होम। सो आवर जॉब वाज हेल्पिंग दीज basically identify the people who required that education, visited their house, explain how they can study from home. So that was the work. We worked around 2 years, and I'm proudly saying I helped more than 30,000 Australian people to study from home. That's how I get the idea about the Vidyakul. We'll share later on. Got it. I'm guessing you were working for the government in this project? It's not directly with the government, but with the college who actually was working with the government. So it's like project was the under government, but we was working with the institutes. And you were doing this in which year? I was doing this from 2014 till 2017 for 3 years. What did you do post 2017 then? Back to India. So what brought you back now from Australia to India? I mean, you were having a great career over there. You were doing something which you're passionate about. So what brought you back to India? One is, I can say, the work what I was doing, which I also mentioned to you, कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको online education only the way to learn for them. And second thing, I can relate that story with me when I was in India. जब मैं schooling में था तो मेरे को याद था कि मैं 40 किलोमीटर जाता था. Then I analyze and start researching it कि what is happening in India, और बेसिकली स्टेट लेवल स्कूल साइड में, क्योंकि आई एम डिपली हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो जब मैं देखा तो तभी 2017 में KPMG की रिपोर्ट आई, KPMG एंड द गूगल। दैट रिपोर्ट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दैट रिपोर्ट चेंज माय थॉट ऑन इंडियन एजुकेशन साइड।
तो उसमें लिखा था कि कैसे बायजूस, अन अकेडमी और दिस big player helping majorly the metro city kids to learn online. And there is a big 70%, not a big, I can say 70% of population in India who lives in tier 3, tier 4 towns. These will be the next user for the online education. और वो अपनी भाषा में ही पढ़ना चाहेंगे. Then this idea come about विद्याकुल. तो 2017 मई में जब KPMG की रिपोर्ट आई, मैंने जून में रिपोर्ट को देखा और अगस्त में आई डिसाइडेड कि बॉस नहीं, आई वांट टू डू समथिंग एंड आई वाज डूइंग गुड इन ऑस्ट्रेलिया. पता नहीं क्या हुआ कि 2 दिन मैं नहीं सो पाया और मेरे को लगा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली रियली वांट टू डू इट. विद इन 2 days आई take the decision, pick up my bag and back to India. Wow. So that's like your calling in some sense. Yes, I think सेल्स में मैंने एक चीज सीखी है. अगर आप विद इन 2 days अगर डील क्लोज होती है, अदरवाइज डील कभी क्लोज नहीं होती. तो यू टुक द डिसीजन इन 2 days, अदरवाइज यू डोंट डू इट, यू डोंट गेट द कस्टमर. तो वही बात था कि अगर 2 दिन में मैंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा. सेकंड थॉट नहीं रखने का. So you came back to India, but आपको क्लियर था कि आप कौन सा बिजनेस बनाने वाले हो, as in which segment in education you are going to target? Honestly तुषार जी, इतना तो नहीं था जो आज है. हाँ, बट एक ओवरव्यू था क्योंकि मैं Udemy से काफी ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज मैंने किए हैं. तो Udemy was my inspiration. तो उसको एक थीम रख के जो स्टार्ट किया था विद्याकुल की एजुकेटर्स इंडिया में हैं जो हिंदी मीडियम या फिर किसी स्टेट बोर्ड पे काम कर रहे हैं. सो हाउ कैन वी हेल्प दीज एजुकेटर्स टू मेक मनी एट सेम टाइम, हाउ कैन वी कनेक्ट दीज एजुकेटर्स टू द लोकल स्टूडेंट. तो थीम तो Udemy था, बट इतनी पिक्चर क्लियर नहीं थी क्योंकि जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने से सोचते हो, एक सेल्समैन से बिजनेस की तरफ आते हो, तो चीजें ऐसे लगती हैं कि बहुत आसान है, हो जाएगा, मतलब बट व्हेन यू एक्चुअली डीप इनटू इट देन यू एनालाइज कि हाँ, मतलब कहने में और करने में काफी अंतर आ जाता है. So can you tell us a little bit more ki what are you trying to do with Vidyakul, right? What exactly is the problem that you're trying to solve? So Vidyakul itself, a tagline which we using is भारत का ऑनलाइन स्कूल. तो आप देखेंगे आज के टाइम में तुषार जी एट में मोर देन 3,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं. और आप किसी भी कंपनी पे जाएं जो एकेडमिक में काम कर रहे हैं, तो देयर मेजर गोल इज कि CBSE और ICSE और IIT या फिर आपको डॉक्टर बनाएंगे. बट दीज आर ओनली दी 10% ऑफ इंटायर इकोसिस्टम ऑफ द एजुकेशन. बट व्हेन वी सी द रेस्ट, द 90%, वो बच्चा जो क्लास जो है 12th के बाद ये सोचता है कि मुझे करना क्या है. उसने साइंस तो ले लिया बट उसे ये नहीं पता कि साइंस के बाद IIT भी कुछ होता है. ये वो बच्चे हैं जो भारत में रहते हैं, जो स्टेट बोर्ड का बच्चा है, tier 3, tier 4 टाउन्स में रहता है, जो अपनी भाषा में ही स्टडी करना चाहता है. उसके लिए मैथ नहीं है, ऑनेस्टली उसके लिए मैथ है गणित, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है और फिजिक्स भौतिक विज्ञान है. ऐसे ही अगर आप स्टेट बोर्ड में गुजरात में जाएंगे तो दे want to study in their local language. But when you see this entire ecosystem, आप अगर इंटरनेट पे भी देखेंगे, there is no one who actually helping these kids. So in a short way, विद्याकुल वो है जो भारत के बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है. हमारा मिशन ये है कि वो बच्चा जो स्टेट बोर्ड में है, जो अपनी भाषा में ही पढ़ना चाहता है, उसके लिए कंटेंट बनाया जाए और एक ऐसा कंटेंट जो अफोर्डेबल हो और जो एक्सेसिबल हो वाया थ्रू वेरी लो फ्रीक्वेंसी इंटरनेट, और जिससे वो डॉक्टर तो नहीं या IITian तो नहीं, बट हाँ क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लेके अपने कुछ फ्यूचर की तरफ जा पाए जो उनके ड्रीम्स है, चाहे वो एक अच्छी जॉब लेना या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना. दिस इज आवर अल्टीमेट. So Tarun, I have seen you saying that Vidyakul is a zero CAC model. What do you mean by that? And how can this be a zero CAC model? I'm saying is zero CAC, but yes, somehow is zero CAC because majorly go-to-market strategy is via through the YouTubes. क्योंकि I see कि जो बच्चे गांव में रहते हैं या कोई भी टेक प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री में आता है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, तो डिस्कवरी इज हैपनिंग वाया थ्रू द यूट्यूब.
तो क्योंकि यूट्यूब को आप बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स इजी टू यूज। तो बच्चा जो है वो पहले यूट्यूब पे ही आता है। सो आवर टॉप ऑफ द फनल इज मेजरली वाया थ्रू यूट्यूब। रिसेंटली वी आर एक्चुअली नंबर वन इन यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और हिंदी मीडियम का इंटायर सेगमेंट। वी आर द नंबर वन यूट्यूब चैनल इन गुजरात। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हमारे पास अभी 4 मिलियन के आसपास का सब्सक्राइबर बेस है। मंथली पे हम करीब यूट्यूब से ही 7 मिलियन व्यूज लेते हैं। So that's how we reaching our chunk of audience coming through YouTube. And second is word of mouth, because end of the day content is the key for attack play. So how good you are delivering, the level of content you deliver, people share. So, from a salesman to an entrepreneur, right? I'm guessing it would have been quite a journey. A lot of time, people who are not from a tech background, they sort of struggle to even make the first move because they think they don't know tech. How will they build a tech product, right? So, when you were starting Vidyakul, was not coming from a tech background a challenge? And if yes, what did you do to sort of overcome it? You are right, actually. तुषार, जो टेक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनके लिए इज ए ह्यूज और बिग चैलेंज। मैं कहूँगा कि मैंने फर्स्ट 6 मंथ, मैं वेस्टेज तो नहीं कहूँगा ऑनेस्टली, इट वाज अ लर्निंग टाइम। फर्स्ट 6 मंथ आई स्ट्रगल अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द टेक साइड अंटिल अनलेस आई फाउंड माय को-फाउंडर। तो उससे पहले का तो ये था कि आज ये बनाना है, कल ये बनाना है, देयर इज ए नो स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फ्रॉम द टेक साइड। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप टेक साइड से एंटरप्रेन्योर नहीं हैं और आपका टेक बैकग्राउंड नहीं है, सो फाइंड द राइट पर्सन। टीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फाइंड ए को फाउंडर जिसकी बैकग्राउंड टेक से है। तो वो जो कॉम्बिनेशन रहेगा, एक पर्सन टेक को हैंडल कर रहा है और एक पर्सन सेल्स एंड द अदर एक्टिविटीज डूइंग इट, it's going to help you a lot. Answer is find the right person. In entrepreneurship, what do you think has been toughest for you? Is it product ko innovate karna? Is it to distribute your product, team building, fundraising? Amongst all these activities, what has been the toughest challenge for you? One thing I can say, तुषार, कि building business की साइड में जब आते हैं तो हर एक चीज का अपना वो रहता है कि इक्वली वेटेज रहती है। अगर मैं कहूँ तो आज से 1 साल पहले जो थी प्रॉब्लम्स वो आज नहीं है, जो आज हैं वो अगले 6 मंथ के बाद भी नहीं रहेंगी। तो बट अगर मैं ओवरऑल बिजनेस को देखूँ तो ऑलवेज से कि फर्स्ट पार्ट फॉर एज ए एंटरप्रेन्योर इज द आइडिया एंड द बर्निंग डिजायर विच इज द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप तो यही है कि क्या आप में और आपकी जो साथ में को फाउंडर है या टीम है, क्या उसमें उस प्रोडक्ट की बर्निंग डिजायर है और उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। तो फाइंडिंग द MVP इज द की, फाइंडिंग और सीइंग द डिमांड। तो ये सबसे पहला है एंड देन द ऑल इज द नेक्स्ट स्टेप्स। अगर मैं स्टेप वाइज कहूँ तो टीम इज द सेकंड, फर्स्ट इज द डिमांड, team is the second, then is all about scalability, figuring out that all things which take you to the next step. हर चीज का एक अपना ही वो struggling है, is equal, everything is equal. So anything particularly that has worked for you for team building? Are there any sort of, what do you say, hacks that you use for building a team? One thing I can say is works with me, my sales experience. I'm a good storyteller, I can say that. तो एज ए टीम आपको एज ए फाउंडर इज ब्रिंगिंग गुड पीपल एंड आस्क देम टू वर्क फॉर यू इज द बिग चैलेंज। अगर आप उनको विजन नहीं दिखा पाओगे और वो आपके पास क्लियरिटी नहीं होगी कि क्या आप चाहते हो, तो वो टीम के पास नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग, यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, शो द विजन टू योर टीम is going to work out. So for me, I can say मेरा sales experience और एक storytelling helps me a lot. And how is Vidyakul doing right now? How has been COVID for the business? I think Vidyakul is doing absolutely amazing. I can say that right now because in last 1 year जो COVID और इस situation में एक चीज जो हमारे लिए beneficial भी कहूँगा, और अगर मैं situation को देखूँ, of course COVID is not गुड फॉर इंटायर कंट्री। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है, वो काफ़ी हद तक कवर करने में इंटायर वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा।
बट अगर मैं अपनी साइड जस्ट एजुकेशन की साइड से देखूं तो इस कोविड की सिचुएशन में वो बच्चा जो टियर 3 टियर 4 में रहता, जिसे आज से 1 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो आज उसको पता है कि ऑनलाइन क्या होता है. The surge coming from tier 3, tier 4 cities is much more than the metro cities. So user discovery is huge now. एंड गूगल साइट से और यूट्यूब ने भी ये मेंशन किया है कि जो नेक्स्ट ग्रोथ है उनकी वो टियर 3 टियर 4 से है, और वो भी वर्नाकुलर में है कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी भाषा में ही कंटेंट को डिस्कवर कर रहे हैं. तो कंटेंट डिस्कवर साइड से ह्यूज इम्पैक्ट फॉर अस. So moving on, Tarun, there has been so much noise, mostly so because COVID has been such an inflection point for education technology, right? There is so much noise about new businesses raising in $1 million here and there. So does this news or does this noise affect you as an entrepreneur? डेफिनेटली इससे इफेक्ट अलॉट. मतलब जब आपके इकोसिस्टम में किसी को फंड मिलता है तो 1-2 दिन तो रात को नींद भी नहीं आती यार, आपका क्या होगा. और ये ट्रूथ है. अगर कोई ये कहेगा कि मेरे को इफेक्ट नहीं होता, आई एम डूइंग माय वर्क, ऐसा नहीं है. रियलिटी इज एवरी सिंगल फाउंडर को जब उसके इकोसिस्टम में किसी को फंड मिलता है, ही गेट डिस्टर्ब 1 or 2 नाइट डेफिनेटली कि क्या हो रहा है भाई, अपना क्या होगा. तो यस इज इम्पैक्ट, but same time how you communicate with yourself and which is very very important. और आप किस मोड में हैं, क्योंकि कई बार ये जो फंड की रेजिंग साइड रहती है आपके इकोसिस्टम, इट्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेयर यू एक्चुअली गोइंग. To studying other companies actually help you to find out your mode कि आप किस टाइम में हैं और इस टाइम में आने वाला फ्यूचर क्या है. और आप अगर उस तरह से देखें तो इंडियन एडटेक इकोसिस्टम इज ह्यूज. अभी अगर मैं कहूँगा इंटायर कंपनीज जितनी भी हैं जिन्होंने फंड रेज हैं और जो यूनिकॉर्न हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 to 10 ईयर में देयर विल बी मोर देन 10 यूनिकॉर्न इन द एडटेक स्पेस, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है. अभी अगर स्टेट बोर्ड को देखूं तो 80% लोग जो गांव में रहते हैं वो अनटच्ड है, टोटली अनटच्ड. सो इज ए ह्यूज मार्केट. So entrepreneurship in some sense, Tarun, is a journey with all these highs and lows, right? How do you deal with it? I mean, how have you grown as a CEO in 2017 and as a CEO in 2021? I think yes, there is a lots of up down. कुछ टाइम ऐसे भी आता है जब अकेले बैठ के आपको ऐसे लगता है कि रो दें, और ये ट्रूथ है. ऐसा नहीं है कि कोई ये कहेगा कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि कई बार आपको लगता है कि you want to give up, but end of the day you are an entrepreneur, you come back again the next morning, next day. I think in this entire journey books helps me a lot, so I really like to spend time whenever I get to reading the books. और first is book, second meeting good people. I think meeting you even is it's absolutely amazing. और वो लोग जो इस चीज़ से निकले हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना is very important. तो मैं कहूँगा अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो books is one, and second is other founders meetup is going to help you a lot. And did you actively build a support system around you? बहुत से founders होते हैं जो एक mentor network भी बनाते हैं अपने around. So have you done something like that as well? Yes, because I seen that in my early days. क्योंकि जैसे मैंने आपको mention किया था कि अगर मैं थोड़ा सा past में जाता हूँ तो that's how I started sales just because of the one person. और आज भी वो मेरे मेंटोर हैं. अगर कोई सेल्स की बात आती है तो मैं हमेशा उनको फोन पे आई पिक अप द फोन एंड आई आस्क कि यार मैं सेल्स में यहाँ पे ट्रबल. सो आई थिंक बिल्डिंग ए ग्रेट नेटवर्क इज द की टू सक्सीड. आई थिंक काफी ज्यादा आपने कोट भी सुने होंगे, काफी कोट कि हु यू हैविंग कप ऑफ कॉफी यू विल बिकम द सेम, एंड दिस इज ट्रू. स्पेंडिंग टाइम विद गुड पीपल यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ द वाइब्स. सो yeah. So you have been hustling since long, Tarun. What is the motivation behind your hustle? It's change time to time. Honestly, तुषार जी, कि जब मैं सेल्स मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा पहला टारगेट था कि आई हैव टू बिल्ड हाउस फॉर माय फैमिली इन इंडिया, क्योंकि मेरी मदर ने कुछ ऐसे वर्ड कहे थे मुझे
कि जो मेरे को पेन लगा और उस पेन से within 2 years time I built really good house for my family, a decent house. So time to time goal is change. Started with making money, बिल्डिंग द हाउस. जब सेल्स किया, जब इंडिया आया तो गोल थोड़ा सा डिफरेंट था कि कुछ करना है. आई थिंक गोल्स चेंज बेस्ड ऑन योर experience and the time. You keep that track, but still I have some goal. Either is financially also, or either is impact also. You have to keep it balanced through financially also and the society impact also. All right, Tarun, we have an exciting last segment, which is the rapid fire round. I'll shoot a one-liner to you and you have to let us know whatever first thought that comes to your mind. Okay. Pedigree or passion? Passion. Profitability first or growth first? Both together. Okay. Vidyakul in 2025. Helping 5 crore student, class 9 to 12, 7 languages. One thing you want to change about the startup ecosystem in India? Founder network, जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएं. One investor you follow? Vaibhav from Better Capital. One entrepreneur you idolize? Elon Musk. I wanted somebody to say that in my podcast. An interesting white space where you see Indian entrepreneurs are not solving for right now? I'm in education sector, so I will talk about the education only. मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एकेडमिक या फिर वो लोग डॉक्टर या इंजीनियर को ही बिल्ड कर रहे हैं. अगर हमें अपनी कंट्री को अगले लेवल पे लेके जाना है तो आई थिंक वी शुड बिल्ड एंटरप्रेन्योर, और वो इकोसिस्टम है वो स्कूल में होना चाहिए. तो देयर शुड बी ए वन सब्जेक्ट ओनली टॉक्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप्स. एंड स्कूल्स में जो लाइब्रेरीज हैं उन लाइब्रेरीज में पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स ज्यादा होनी चाहिए rather than the academic. That's the only thing what I want. Top 3 books which you will recommend to our listeners? How to Win Friends and Influence People, Hacking Growth, Effective CEO. Fantastic. So Tarun, before leaving, what would be your last one piece of advice for the aspiring entrepreneurs? Inspiring entrepreneurs, I would like to say कि यार अगर तुम कुछ करना चाहते हो, take the decision. I don't want अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा सुनते हैं, करना नहीं है, करना है, तो take the risk. Regret is not good. Actually, nothing you're going to lose. You're going to learn a lot. If you want to do something, just do it. That's it. All right, Tarun, on that note, we wrap our conversation today. It was really inspiring to listen to you and your journey. We wish you and Vidyakul the best for future. Thank you so much, Tushar. And looking forward to catch up with you soon. If अगर मैं Mumbai आ रहा हूँ तो yes. For sure. Okay, Tarun. Bye. Thanks, man. Thank you. Bye. It's a wrap for today. We hope you enjoyed this conversation. We will be back in the next episode with yet another story. If you have any suggestions for us, please reach out to us at our social handles. Don't forget to tune in to The Hustle Code, presented to you by Team Dexter. At Dexter, we partner with passionate entrepreneurs and help them scale. Until next time, keep hustling.